morning, dear students. Welcome to my next lecture. So today we will continue our chapter number 4 of geography, and the chapter name is climate. So in this chapter we already discussed about the climate and weather. What is weather and what is climate, and what is the difference between weather and climate. And we also discussed about the elements affect the climate and weather, and we also discussed the climatical control factors like altitude, height, latitude, and other factors like far away from the sea region, how they affect the climate of our India, and other reasons are like ocean currents, relief feature, how they control our climate. So we already discussed these things. So today, in my today's lecture, we discuss about the factors affecting the India's climate. Which factors affect the India's climate? We discussed today this thing. So factors affecting the India's climate. So in today's lecture, we discuss factors affecting the India's climate. Which are the factors those affect the climate of India? So first factor is latitude. So, how the latitude affect the India's climate? So, we already discussed. Again, we discuss. As you know that the position of India on the equator, means on the globe is. This is the equator. This is 23.5 degree north, means Tropic of Cancer. And this is 23.5 degree south. This is Tropic of Capricorn. Okay. So let's see the India's position. What is the position of India? As we know that the Tropic of Cancer, this is 23.5 degree north. This is the Tropic of Cancer. It divides India into two equal halves. कि टू इक्वल हाफ्स में हमारी इंडिया को डिवाइड करती है, मीन्स हाफ इंडिया कम्स इन दिस रीजन एंड हाफ इंडिया कम्स इन दिस रीजन. ओके, टू इक्वल हाफ्स में हमारी इंडिया को डिवाइड कर रही है, एंड दिस रीजन मीन्स दिस रीजन. This region we already discussed when we studied about the heat zones. This is the torrid zone. So torrid means heat or hot. Basically, it is a very hot region because the sun rays directly falls on this region. Direct sun rays इस region पे आती है, ठीक है ना? So due to the direct sun rays insolation, they trap the insolation of the sun energy, and this region is very hot region. So ये हमारा hot region हो गया, and these two regions, this region and this region, ठीक है ना? This is 66.5 degree. This is north, this is south. This region is temperate zone. Okay, torrid zone, then temperate zone. This one also a temperate zone. So as you see, the India's position, Tropic of Cancer lies in between the India, means it divides India into two equal halves, northern and southern. So basically this part of India, means southern part of India, lies in the torrid zone, and torrid zone is a very hot zone because it receives the direct sun rays, and the rest of the region receive the slanting rays of the sun.
when we are moving to the upwards or downwards, means 1 degree, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 90 degree. So continuously when we are moving towards the pole sides, the latitudes receive the slanting rays of the sun and receive the less heat. तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की साइड या साउथ पोल की साइड जाएंगे तो हमारी सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग होती जाएंगी. हमने भी ये भी पढ़ा था जब पढ़ा था कि अर्थ की जो शेप है दैट इज इन कर्व शेप. कर्व शेप की वजह से भी यहाँ पर जो हमारे सन रेज जो आती है डायरेक्टली आप आती हैं और दूसरे एरियाज पर जाने के लिए उन्हें स्लैंटिंग होना पड़ता है. ठीक है ना. तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड मूव करेंगे हमारी सन रेज स्लैंटिंग होती जाएंगी और ये जो एरियाज हैं हमारी लेस हीट रिसीव करते हैं. सो ड्यू टू रिसीव द लेस हीट यहाँ पर कंपैरेटिवली टॉरिड जोन की कंपैरेटिवली कम गर्मी यहाँ पर होती है. ओके. सो इंडिया कम्स इन दिस जोन. तो ये बहुत ज्यादा हॉट रीजन होगा इंडिया का क्योंकि ये टॉरिड जोन में आ रहे हैं. एंड द अदर जोन मीन्स अपर मीन्स नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया इट कम्स इन टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन में बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती है बहुत ज्यादा गर्मी भी बट इट इज नियरली मीन्स इट लाइज नियरली द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन के नियर ही है. तो ओवरऑल अगर हम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स. What are the latitudes? Latitudes are the horizontal line and these are the imaginary line draw on the globe. ग्लोब पे हॉरिजॉन्टली जो हमारी लाइंस ड्रॉ की जाती है अर्थ को. ये जो हमारी लैटिट्यूड है 0 डिग्री इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओरिजिनल लाइंस नहीं है. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस एंड इट डिवाइड इनटू अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and this is the southern hemisphere and our India lies in the northern hemisphere. Northern hemisphere में भी इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है that lies in the torrid zone and the north part lies in the temperate zone. तो overall it affect the India's climate means latitude affect the India's climate 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे होने की वजह से means 8 डिग्री to 37 डिग्री. इंडिया की जो पोजीशन है 8 to 37 डिग्री के इन बिटवीन है. तो इन लैटिट्यूड्स में होने की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है हमारे ट्रॉपिकल इसे सब ट्रॉपिकल हम हॉट क्लाइमेट कहते हैं. सब ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन ये हो गया. उसके बाद सब ट्रॉपिकल. सो सब ट्रॉपिकल हॉट क्लाइमेट हम इंडिया को कहते हैं और इसी रीजन में मीन्स इस पोजीशन पर होने की वजह से हमारे इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ द लैटिट्यूड अफेक्ट द इंडिया क्लाइमेट. किस टाइप से हमारा लैटिट्यूड जो है इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. क्लियर. नाउ वी टेक द सेकेंड टॉपिक. Second point is subtropical. According to the latitude, India's climate is subtropical. Hot. Okay. Now next point is altitude. Altitude also affect the India's climate. So how the altitude works or altitude affect the India's climate. As we know that India is having so many relief features means so many kind of varieties of land like anywhere is mountain, anywhere is coastal plain, anywhere is plain. So in mountainous region means in northern region Himalayas where the great Himalayas are there, the height of these mountains like you can see these are the mountains and height of these mountain is 6000 meter. Okay. So ये जो height है altitude का basically हम meaning लगा के चलते हैं height से. ठीक है ना. एवरेज जो हाइट है हमारी जो माउंटेन्स की है जो यहाँ हिमालयाज हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो हमारी 600 मीटर है और जो कोस्टल रीजन्स हैं कोस्टल रीजन्स मीन्स दीज टू रीजन्स दीज आर द कोस्टल रीजन्स दैट लाइज नियर द सी के नियर जो हमारा साउथ वाला पार्ट है दैट इज द कोस्टल रीजन. इट्स हाइट इज 30 मीटर अराउंड. तो इसकी जो हाइट है 30 मीटर अराउंड है इसकी हाइट. ओके. सो इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ.
So due to the height of mountains and the height of these coastal regions, so India means Himalayas prevent us from the cold winds coming from the सेंट्रल एशिया की, सेंट्रल एशिया की साइड से जो हमारी कोल्ड विंड्स आती हैं, ठीक है ना, उन विंड से हमें प्रोटेक्ट करता है। उन विंड से हमें प्रोटेक्ट करने की वजह से जो हमारे यहाँ का इंडिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता है। सो इन दिस वे द हिमालयस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स एंड दिस सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मीन्स इंडिया इज नोन एज अ सबकॉन्टिनेंट। इंडिया को हम सबकॉन्टिनेंट भी कहते हैं बिकॉज इट हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। So we can say that India is a subcontinent. So this subcontinent experiences comparatively milder winter. Milder winter meaning क्या होता है? Milder winter meanings होता है not very extreme cold. कि इसी रीजन की वजह से हमारे यहाँ जो इंडिया में होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर नहीं होती है। मीन्स ठंड तो होती है बट जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, वहां पर जो ठंड होती है बहुत ही ज्यादा होती है। और जो हमारे यहाँ की ठंड होती है मीन्स हमारे यहाँ जब विंटर्स होते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए वो समर के इक्वल होते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है। तो इंडिया क्यों रहता है, क्यों इतना ठंडा नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। ये माउंटेन्स हमारी जो सेंट्रल एशिया की साइड से जो हमारी कोल्ड विंड्स ब्लो करके आती हैं उन विंड से हमें प्रोटेक्ट करता है और एज ए बैरियर वर्क करता है। ड्यू टू दिस रीजन we are not facing extreme cold in our country. Okay, I hope you understand the second point also. mild winters होती है। So due to altitude it affect the India's climate, इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है और हमारे यहाँ ज्यादा कोल्ड नहीं होने देता है। Now third point is pressure and winds. How the pressure and wind affect the India's climate? To understand the better way in this to this topic, first we understand the pressure belt. So let's see the pressure belt. So let's first understand the pressure belt. First I am telling you the instrument through which we can measure the pressure of air or atmospheric pressure. That instrument we known as the barometer. बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं और देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। एयर मीन्स दैट कैन मूव एनीवेयर, कि कहीं भी जो मूव करती है उसको हम एयर कहते हैं। विंड इज अ पर्टिकुलरली मूव अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड द विंड। लेट्स वी सी द प्रेशर बेल्ट। दिस इज द इक्वेटर 0 degree. This is North Pole, this South Pole. Okay. So the region lies in equatorial region. This is the equatorial region. You can see. So as we studied, where the high pressure is there means where the cold is there, high pressure is created, and where the region is hot, the low pressure is created. And as we know that this region is very hot, so hot region जैसे मैंने आपको समझाया था, cold high pressure and hot region में क्या होगा, low pressure. In cold region high pressure created होगा वहां पर, hot region में हवा गर्म हो जाती है तो पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाती है, इसी वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएटेड होता है। तो इसी अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, एज वी नो दैट दिस इज अ वेरी हॉट रीजन, सो हियर इज द लो प्रेशर बेल्ट इज क्रिएटेड। सो हियर इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। This we also known as doldrums. Okay, this belt we also known as doldrums. कि यहाँ पर जो हमारी बेल्ट क्रिएटेड होगी वो हमारी लो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड होगी और इस रीजन को मीन्स इस प्रेशर बेल्ट को हम डोलड्रम्स के नाम से भी
जानते हैं। तो इससे ऊपर जो हमारा होगा दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, इससे ऊपर जो हमारा रीजन होगा दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। That is subtropical region. और here the belt is created that is high pressure belt, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ से थोड़ी यहाँ पर कम गर्मी है, तो यहाँ पर हमारी बनेगी लो हाई प्रेशर बेल्ट। सेम वे in south also, here is subtropical high pressure belt. So this subtropical high pressure belt we known as horse latitude. What we known as horse latitude. This belt also, this belt also. First we make all the belts. Now again the belt is created that is low pressure belt. Okay, polar, subpolar, low pressure belt. Next is high pressure belt. मीन्स फ्रिगेट जोन इज हियर, फ्रिगेट जोन यहाँ पर है, तो फ्रिगेट जोन में क्या बनेगी हमारी हाई प्रेशर बेल्ट। एज वी नो दैट फ्रिगेट जोन पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर कौन सी बेल्ट बनेगी हाई प्रेशर बेल्ट। इन द सेम वे इन द नॉर्थ हियर इज subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. Okay, and this region is North Pole region. Here which belt is created? High pressure belt. Polar high pressure बेल्ट। ओके, सो ये बेल्ट हमने बना ली है कि इक्वेटोरियल जो हमारा रीजन है, ठीक है, इक्वेटोरियल यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो एयर का है वो लो प्रेशर होता है। जहाँ गर्मी होगी वहाँ एयर का जो प्रेशर होगा लो होगा। वेयर द कोल्ड इज देयर द एयर प्रेशर इज हाई। सो दिस रीजन इज द लो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड। लो प्रेशर बेल्ट और इस बेल्ट को हम कहते हैं डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स। नेक्स्ट रीजन जो है इससे अपर वाला दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन, तो इससे अपर वाला होगा हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। हियर इज द हाई प्रेशर, लो प्रेशर इज देयर, तो लो प्रेशर है मीन्स बहुत ज्यादा हीट है, उससे ऊपर हम जाएंगे जैसे जैसे अभी हमने दिस साइड इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो हियर द ईस्टर्न लाइट विंड्स blowing and these winds we also known as the permanent winds or trade winds. Permanent winds blowing throughout the year in a same direction. Throughout the year same direction में जो हमारी ब्लो करती है वो हमारी winds होती है permanent winds, और ये हमारी चलती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर हमारा कौन सा है, ये वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस रीजन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो विंड चलती है हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो और ईस्टर्लाइट विंड्स यहाँ से ब्लो करती है। ईस्टर्लाइट विंड्स ईस्ट साइड से हमारी ब्लो करती है, और ये विंड इस टाइप से मूव नहीं करती है।
ड्यू टू द कॉलिएशन। कॉलिएशन होता है कि हमारी अर्थ का जो रोटेशन होता है हमारी विंड पे इफेक्ट डालता है। जब हमारी विंड ब्लो करती है, जब हमारी अर्थ रोटेट होती है, ठीक है ना, ये हमारी विंड है, ये हमारी ब्लो कर रही है। व्हेन अर्थ रोटेट्स द विंड टर्न्स लाइक दैट। ये हमारी विंड्स जो है इस टाइप से टर्न हो जाती है, दैट इज द कॉलिएशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो विंड्स है, ईस्टरलाइज जो विंड्स है, वो हमारी किस तरह से हमारे यहाँ पर ब्लो करेंगी। तो हमारे जो ईस्टरलाइज विंड्स हैं तो ईस्ट साइड से ब्लो करेंगी, दैट इज द ईस्ट साइड। सो इन दिस वे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेम वे हमारे यहाँ से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड ये ब्लो करेंगी। तो हमारी हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर ये है, तो यहां से अब हमारी विंड्स ब्लो करेंगी लो प्रेशर की साइड पे। ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड से ब्लो करेंगी, ठीक है। मीन्स इनका जो बॉटम पार्ट होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। बॉटम पार्ट मीन्स यहां से ये ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। ये एरो शो करता है कि इस डायरेक्शन में ये ब्लो कर रही है, इन दिस वे। तो फर्स्ट जो हमारी बेल्ट हो गई वो हमारी हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और उसके ऊपर बन गई हमारी हाई प्रेशर बेल्ट। वहां से जो विंड्स हमारी ब्लो कर रही हैं ये हमारी ईस्टरलाइट विंड्स होती हैं, जो ईस्ट की साइड से हमारे ब्लो करती हैं। उसके बाद है हमारी हाई प्रेशर से फिर यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस रीजन कि अभी हमारा हाई प्रेशर था तो यहां से ऊपर फिर से लो प्रेशर बन रहा है। मीन्स इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में जो हमारी विंड्स हैं वो ब्लो करेंगी, क्लियर। और ये जो हमारी विंड्स होती हैं ये होती हैं वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज मीन्स वेस्ट की साइड से ये हमारी ब्लो करेंगी। तो इनका जो डायरेक्शन होगा इन दिस वे, इन दिस वे द विंड्स आर ब्लोइंग। अगेन द लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड ये ब्लो करेंगी, दैट इज हाई प्रेशर। ये अगेन जो हमारी हाई प्रेशर वाली विंड्स हैं ये कौन सी विंड्स होती हैं, हमारी ईस्टरलाइज विंड्स होती हैं। तो फिर से ये ईस्टर की साइड ब्लो करेंगी इन दिस वे। सेम इज अप्लाई इन दिस रीजन। दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड ब्लो करेंगी, लेकिन ये विंड्स हमारी होंगी वेस्टरलाइज। क्लियर। अगेन द ईस्टरलाइज विंड्स आर देयर। So don't be confused which winds are easterlies and which winds are westerlies. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारी, ठीक है, लो प्रेशर पे जो हमारी यहाँ पर ब्लो कर रही है दिस रीजन, ये हमारी जो होती है ईस्टरलाइज विंड्स होती हैं, उसके ऊपर हमारी वेस्टरलाइज फिर ईस्टरलाइज। तो ये हमारा जो सीक्वेंस हो गया दैट इज ईस्टरलाइज वेस्टरलाइज ईस्टरलाइज। सेम इन दिस वे, ईस्टरलाइज वेस्टरलाइज ईस्टरलाइज। क्लियर। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको लर्न ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ ये जो हमारी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो क्रिएटेड हो रहा है पोलर और ट्रॉपिकल के बीच में, यहाँ भी पोलर और ट्रॉपिकल के बीच में ये जो दो हमारी बेल्ट्स हैं यहाँ पर वेस्टरलाइज होती है, बाकी रीजन्स में हमारी हाई प्रेशर मीन्स हमारी जो विंड्स होती है ईस्टरलाइज होती है। सो अगेन हम एक बार इसको देख लेते हैं कि किस टाइप से हमारा ये प्रोसेस वर्क करता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर बना 0 डिग्री इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन में जो हमारी बेल्ट बनती है दैट इज द लो प्रेशर बेल्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर और हाई हीट। हाई हीट की वजह से यहाँ हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड हुई जिसे हम डोल ड्रम्स भी कहते हैं। अगेन इससे ऊपर हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड हो रही है जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड कहेंगे। सेम वे जो हमारे साउथ में है यहाँ भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड हुई है हमारी, इसे भी हम कहेंगे हॉर्स लैटिट्यूड। और यहाँ की साइड से जो हमारी विंड ब्लो करती है ये ईस्टरलाइज होती है, ईस्ट की साइड से आप देखेंगे ईस्ट की साइड से ब्लो कर रही है। उससे ऊपर जो हमारी बन रही है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है हमारी इस सीजन में जो विंड ब्लो करेगी ट्रॉपिकल टू सब पोलर में दैट इज वेस्टरलाइज विंड्स।
वेस्टर्लाइज विंड्स होती हैं। उसके बाद फिर से हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर क्रिएटेड हो रहा है ड्यू टू द वेरी एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर होती है, उसी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएटेड हो रहा है। तो यहाँ से जो विंड चलेंगी हमारी, दीज आर आल्सो ईस्टरलाइज। तो हमारे लर्निंग प्रोसेस हो गया। बेल्ट भी हम किस टाइप से लर्न करेंगे, बेल्ट लर्न करने के भी 2 पॉइंट्स हैं। एक तो आप स्टार्टिंग से आ जाइए, हाई देन लो देन हाई, ये सीक्वेंस होती है कि इसी सीक्वेंस में हमारी बेल्ट क्रिएट होती है कि एक बार हाई बनेगी तो एक बार लो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड होगी। तो हाई देन लो देन हाई देन लो, लो आ गया आपका यहाँ पर इक्वेटर पे, फिर से आपका हाई स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ऊपर से जो सीक्वेंस हमारी चलती आ रही है वही सेम फॉलो होगी, हाई लो हाई लो हाई लो हाई। हाई से स्टार्ट हुई, हाई पे हमारी खत्म हो गई। So this is the pressure belt. I hope you understand how the winds blowing, how the pressure belts are forming. So I think you understand. Let's we continue our topic. So let's continue our topic. Our topic is pressure and winds. So in pressure and wind, basically the climate and associated weather conditions of India are basically governed by the atmospheric conditions. कुछ atmospheric conditions होती हैं जो हमारे इंडिया को गवर्न करती हैं। मीन्स उन्हीं के थ्रू हमारा जो क्लाइमेट है उस पर इफेक्ट होता है, वेदर पे इफेक्ट होता है। दीज आर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। फर्स्ट इज pressure and surface winds. Next one is upper air circulation. Next one is western cyclonic disturbances. And tropical cyclones. So one by one we can discuss these terms. So India lies in the region of north. Basically as we know that India lies in the region of north, कि हमारा जो इंडिया है that is the equator, और हमारा इंडिया जो है इस रीजन में लाइज करता है, that is the north, that is the south. Okay. So as we know that India lies in the north region. और यहाँ पर जो हमारी विंड्स चलती हैं, these winds are easterlies. अभी हमने प्रेशर बेल्ट में डिस्कस किया था कि जो इंडिया वाला पार्ट है हमारे, उस रीजन में जो हमारी विंड्स चलती है सब ट्रॉपिकल और जो इक्वेटोरियल वाले रीजन में, दैट इज द ईस्टरलाइज विंड्स. ईस्टरलाइज विंड्स यहाँ पर ब्लो करती हैं, और ये जो विंड ब्लो होती हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. कहाँ से ओरिजिनेटेड होती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स ओरिजिनेटेड होती हैं. यहाँ पर हमारी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन रही थी, ठीक है ना, तो वहां से ये हमारी विंड्स ओरिजिनेटेड होती हैं. एंड दे ब्लो साउथवर्ड्स. और कौन सी साइड में चलती हैं? ईस्टर लाइट से ओरिजिनेटेड होके साउथवर्ड्स की साइड में चल रही हैं. आप देखेंगे इनका जो डायरेक्शन है दिस वे, ये इनका डायरेक्शन है. सो गेट डिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू द कोरोलियस. मैंने आपको बताया था कोरोलियस फोर्स क्या होता है. इट इज एन अपीरियंट फोर्स दैट इज रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन. की अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो फोर्स हमें दिखाई देता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी मूव होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है. उसकी पोजीशन जो है मीन्स जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है वो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है. दैट इज कोरियोलिस फोर्स. ओके. So due to the Coriolis force move towards the equatorial low pressure belt. कि Coriolis force की वजह से जो हमारी है, ये हमारी, मैंने बताया था आपको, जो ये प्रेशर बेल्ट हमारी इक्वेटोरियल रीजन पे बन रही थी, तो ये Coriolis force की वजह से जो हमारी ईस्टरलाइज विंड्स होती हैं ये हमारे इस फोर्स की मीन्स साउथ की साइड मूव करने लग जाती है. मीन्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की साइड हमारी मूव करती है. सो जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर. इन विंड्स में थोड़ा मॉइस्चर भी होता है. एंड दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड. और ये लैंड के ऊपर चलती हैं, ठीक है ना, सरफेस वेव्स जिन्हें कहते हैं हम. सो देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन. और लैंड जो हमारा रीजन होता है, बेसिकली हम जानते हैं कि जब ओशियन रीजन के ऊपर विंड्स ब्लो करती है उनमें मॉइस्चर का कंटेंट जो होता है ज्यादा होता है. तो इन विंड्स में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता है, तो इसी वजह से ये विंड्स जो होती हैं बहुत ही लिटिल रेन
और कई बार रेन नहीं भी करती हैं। सो द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया, कि हमारे इंडिया पे जो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड होती है और जो विंड की कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। बिकॉज इन द ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया, कि विंटर्स के टाइम पे यहाँ जो बनता है हमारा मीन्स, ये तो अभी हमने ओवरऑल पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में किस टाइप से हमारी प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड होती है। अब हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें कि इंडिया के हमारे जो रीजन है, ओनली इंडिया रीजन में प्रेशर बेल्ट किस तरह से वर्क करती है। तो इंडिया रीजन में जो हमारे विंटर्स है वहां पर हमारे नॉर्थ में ड्यू टू द हिमालयाज पे बहुत कोल्ड होती है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ठंडा रीजन है। तो इसी रीजन की वजह से जो हिमालयाज रीजन है वहां पर ठंड होती है और वहां पर हमारे बेल्ट क्रिएटेड होती है हाई प्रेशर बेल्ट। तो वहां से जो विंड्स हैं जो ब्लो करके आती है वो कोल्ड विंड्स हमारी होती हैं। लो प्रेशर एरिया की साइड विंड ब्लो करती है, तो लो प्रेशर एरिया कहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, ये हिमालय से हमारे विंड्स आ रही है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया की साइड। तो लो प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है, हमारे साउथ में क्रिएटेड हो रहा है हमारा लो प्रेशर एरिया। तो साउथ में हमारे क्या है, ओशियंस है, तो ओशियंस की साइड में ये विंड्स हमारी ब्लो कर रही है। सो इन समर, और समर टाइम में जो पोजीशन होती है इनकी पोजीशन चेंज होती है। समर में जो होती है हमारी ये जो विंड लो प्रेशर एरिया डेवलप इंटीरियर, की लो प्रेशर एरिया डेवलप करती है इंटीरियर मीन्स इंडिया के मिडल वाले एरिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड होती है। और ये जो विंड्स होती है नॉर्थ वेस्टर्न होती हैं, और ये जो हमारी विंड्स होती हैं कंप्लीटली रिवर्सल डायरेक्शंस ऑफ विंड्स का काम करती है। रिवर्सल मीन्स होता है एकदम से डायरेक्शन चेंज करना। लाइक अभी तक ऐसे हमारी आ रही थी विंड्स, ईस्टर्लाइट्स विंड्स यहाँ पे थी, साउथ की साइड पे जा रही थी, यहाँ पर जो हमारी है नॉर्थ वेस्टर्न हो गई है, ये नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है ना, इस साइड में हमारी ये विंड्स हो गई है, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स हो गई है। सो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडिया, तो एयर जो हमारी है हाई प्रेशर एरिया, सदर्न इंडिया में हाई प्रेशर एरिया की साइड से मूव करती है और सदर्न ईस्टर्न डायरेक्शन में ही मूव करती है। जब ये इक्वेटर में एंटर करती है, व्हेन इट एंटर्स इन इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर मीन्स ये कि साउथ की साइड से हो रही है ये मूव हमारे इंडिया में। व्हेन इट एंटर्स इन इक्वेटर, नॉर्थ से साउथ में आ रही है, जब ये इक्वेटर में एंटर करती हैं तो राइट एंगल पे ट्विस्ट हो जाती हैं और वहां पर लो प्रेशर एरिया बनाती हैं हमारे इंडिया में। सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, कि हमारी विंड्स ये एज वी नो दैट कि यहाँ पर पानी है, ठीक है ना, ओशियन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है। तो ये जो विंड्स हमारी आ रही हैं साउथ की साइड से इक्वेटर में एंटर होती है, जब ये when these winds enters in equator region, ये हमारी विंड साउथ की साइड से ब्लो कर रही है। एयर ब्लो कर रही है हमारी, ठीक है ना, इक्वेटर रीजन में जब एंटर होती हैं तो ये टर्न हो जाती है, और ये टर्न होने की वजह से हमारे इंडिया में इस टाइप से साउथ की साइड से एंटर करती है। तो जो हमारे इंडिया में जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है, जो मानसून सीजन आता है, वो हमारे कौन सी विंड्स की वजह से आता है, ये हमारा है वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो साउथ वेस्ट मीन्स वेस्टर्लाइज, साउथर्न और वेस्टर्लाइज विंड्स जो होती हैं उन्हीं के थ्रू बेसिकली सदर्न विंड्स जो होती हैं उनके थ्रू हमारे इंडिया में मानसून एंटर करता है। तो ये मानसून हमारे जैसे फर्स्टली हिट किया हमारे केरला वाले पार्ट को, धीरे धीरे जब ऊपर जाती है, ठीक है ना, धीरे धीरे विंड्स पहले यहाँ हिट किया, यहाँ बारिश हुई, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया। तो इस तरह से हमारा मानसून जो होता है वो इंडिया में हमारा अपग्रेड होता है। तो इनको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि इन्हीं विंड्स के थ्रू हमारे इंडिया में मानसून एंटर किया है, तो इनको हम कहेंगे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और जो विंड्स होती हैं, दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, कि वार्म ओशन करंट, आपको पता है कि यहाँ पर जो 0 डिग्री इक्वेटर है, मैंने आपको बताया था ओशन करंट्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट जो होते हैं इक्वेटर साइड से जो स्ट्रीम्स हमारी मूव करती है, पानी फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं वार्म ओशन करंट्स। तो वार्म ओशन करंट है यहाँ पर, तो यहाँ से जो हमारी विंड्स ब्लो करेंगी वो विंड्स भी वार्म होंगी। तो वार्म विंड्स यहाँ पर होती हैं, और वार्म विंड्स जब के साथ उनमें मॉइस्चर भी होता है,
और इसी वजह से हमारे जो इंडिया में जब ये एंटर करती हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर रेनफॉल क्रिएट होती है। सो वी डिस्कस दिस पॉइंट, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स कैसे हमारे यहाँ पर बारिश होती है इंडिया में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अपर एयर सर्कुलेशन। दिस पॉइंट we discuss in our next lecture. Today only this we have discussed how the latitude affect the climate, how altitude affect the climate, pressure and wind. We also discussed the pressure belt. I hope you understand this lecture, and thank you and have a nice day.